Yes, here we were. So these are the four components. Then now in this chapter, uh, although four sectors are there, but this study of this aggregate demand, that has been confined to the study of two sectors only. So whatever we are going to study in this concept, that will be broadly based on the existence of two sectors. Although there is government sector, there is a foreign sector where this net exports take place, but Keynes has assumed that their role comes later on. Firstly, the role of this private consumption expenditure and investment expenditure, these two sectors, मतलब कौन से sectors हो गए? This comes under household sector and this comes under this producer sector. So he has confined his study broadly to these two sector model. Two sector model includes household and firms sector. Later on, we will discuss the role of government also, that will also come. But here in the beginning, he is taking these two sectors only. Okay? So in these two sectors, according to Keynes, he has further broadly confined this aggregate demand to the addition of two things only. One, he has included consumption expenditure and this he has included investment expenditure. ठीक है, ये दो चीजों को कवर किया है उसने, consumption expenditure plus investment expenditure. Now, if we see very carefully and minutely, so you will observe that in these two things, indirectly role of government is also coming. How is it coming? कि जो consumption expenditure है, when we say कि government incurs expenditure on consumption also, अपनी routine कामों के ऊपर भी खर्च करती है, तो ये consumption expenditure जो है, it is being incurred not only by the private household but as well as by the government also, indirectly अगर हम इसको समझे. And similarly investment expenditure, it is not only being incurred by the private producers but it is also being incurred by the government. ठीक है, तो बट हेयर अभी हमने ब्रॉडली यही दो रखने, यही नाम रख के हम इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. सो नाउ कमिंग टू दिस, अब हमने क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड के दीज टू कंपोनेंट्स है. नाउ वन बाय वन वी विल मेक स्टडी ऑफ बोथ ऑफ दीज. फर्स्टली वी विल रीड अबाउट दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर in detail, then we will read about this investment, then in the end we will add both the things, then we will come to the concept of AD. ठीक है, आपकी बुक में सीधा सीधा दिया है, हमने उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना. सो प्लीज फॉलो एज आई एम टेलिंग. फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब आप चेक करो जरा, यू प्लीज सी इन योर बुक, जहां पर ये दिया ना एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल, ये अभी नहीं करना है, दिस वी विल कम लेटर ऑन. अभी यू प्लीज टर्न योर पेजेस, नेक्स्ट एक पेज छोड़ के, देन इट इज कमिंग कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दिस कॉन्सेप्ट इज देयर. मतलब हमने पार्ट्स को पहले स्टडी करना है, फिर मेन टर्म के ऊपर आना है. ठीक है, यहाँ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, नाउ कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन मीन्स, consumption means, what is consumption? Consumption मतलब that part of our income which we spend on the purchase of various goods and services. 11th class में भी you have read this definition. Consumption means that part of our income which we spend on the purchase of different or various goods and services. And why do we purchase goods and services? Because they directly satisfy our wants. ठीक है, they directly give us satisfaction, they give us contentment, they give us happiness, they give us a sense of fulfillment. जो भी हमें चाहिए होता है जिस भी चीज़ से, तो हमें अच्छा लगता है उस चीज़ को कंज्यूम करके, सेटिस्फेक्शन मिलती है. सो दैट इज़ वाई वी स्पेंड मनी. ठीक, नाउ ही इज सेइंग कि भी जो कंजम्पशन है, जब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टर्म कंजम्पशन फंक्शन, तो देन केन्स इज सेइंग कि भी कंजम्पशन जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ इनकम. मीन्स फंक्शन मीन्स डिपेंड्स, कि जो कंजम्पशन है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द इनकम. दैट इज वेरी ट्रू ऑल्सो. आपके पास पैसे ही ना हो तो आप क्या कंज्यूम कर लोगे? आपके पास इनकम ही नहीं है. इफ यू डोंट हैव मनी इनकम विद यू, यू और मी, एनीवन, इफ वी डोंट हैव मनी इनकम विद अस, देन वी कैन नॉट कंज्यूम, वी कैन नॉट गो टू मार्केट, वी कैन नॉट बाय एनीथिंग. दैट मीन्स कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम. ठीक है, कंजम्पशन हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है. एंड और हम क्या करते हैं, देन विद द हेल्प ऑफ दैट अवेलेबल मनी इनकम वी गो टू मार्केट एंड वी बाय द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अस. ठीक है, अब इसी बात को, नाउ दिस हैबिट ऑफ कंजम्पशन, दिस इज वेरी मच यूनिवर्सल थ्रू आउट द वर्ल्ड. दुनिया में यूनिवर्सल होता है ऐसी चीज, ऐसा फिनोमिना विच इज प्रेवलेंट अमंग ऑल द पीपल, अमंग ऑल द ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड. सभी ही लोग, वेदर वी आर इन इंडिया और श्रीलंका और अमेरिका और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी रहते हो, चाहे डेवलप्ड कंट्री है और इट इज अंडर डेवलप्ड कंट्री, एवरीवेयर पीपल स्पेंड मनी.
किस किस तरह से खर्च करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम, ठीक है, ये एक सीधी सी बात है। अब इसी बात को ही, कंजम्पशन फंक्शन को ही दूसरा नाम भी, वन अदर नेम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है टेंडेंसी, हैबिट, आदत बोल देते हैं ना, खर्चने की आदत जिसको बोलते हैं। तो प्रोपेंसिटी मीन्स टेंडेंसी और हैबिट और इंटेंशंस ऑफ द पीपल टू स्पेंड मनी, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स दैट शेड्यूल, दैट टेबल which tells us about the different levels of consumption at different levels of income. अगर आपको याद हो लास्ट ईयर एक हमने किया था डिमांड थ्योरी, उसमें किया था डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द टर्म शेड्यूल? शेड्यूल मतलब टेबल, एक टेबल जिसमें हम दो चीज़ों का रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। तो हियर सेम थिंग इज हियर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स इट इज ए टेबल, विच टेबल? इट इज ए टेबल रिलेटेड टू अवर कंजम्पशन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड अवर लेवल ऑफ इनकम। मतलब अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर हम कितने पैसे खर्च करते हैं। जो टेबल हमें ये रिलेशनशिप शो करता है, दिखाता है, एक्सप्रेस करता है, दैट टेबल इज कॉल्ड कंजम्पशन शेड्यूल और द सेम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट, यू मे राइट इन योर बुक ऑल्सो, प्रोपेंसिटी का मतलब हैबिट, टेंडेंसी, इंटेंशन एंड द टेबल विच शोज अस दिस रिलेशन, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन शेड्यूल, ठीक है, या प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन शेड्यूल। सो अब हमारी जो कंजम्पशन है वो ब्रॉडली मेन एक चीज़ है जिसके ऊपर डिपेंड करती है, एज आई सेड अर्लियर, इट डिपेंड्स अपॉन आवर इनकम। सेकेंडली, थोड़ा सा एट ए सेकेंडरी लेवल, आवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर होता है पर्सन टू पर्सन इंटरेस्ट्स वेरी, पर्सन टू पर्सन नीड्स ऑल्सो वेरी। आप बच्चे हैं, आपने अभी कोई घर का काम नहीं करना, आप मार्केट जाते हो, आपकी इंटेंशन होगी एक ड्रेस ले ले, एक टॉप ले ले, एक जीन्स ले ले, या अपना कुछ और खाने पीने का कुछ ऐसा कोई सामान ले ले। यू मे नॉट बी बॉदरिंग अबाउट योर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स, but on the other side, when your parents are going to market, their first and foremost priority will be to buy those things which are required for the family, which are required for the household, ठीक है ना। मतलब हर एक अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दैट मीन्स कि जो अवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन and it depends upon his habits, depends upon his what can we say, interest towards fashion, his taste, habit, जिसको जो अच्छा लगता है उसकी कोशिश होती है वो चीज़ खरीदने की, ठीक है जी, ये मतलब है। तो नो डाउट ऑब्वियसली मेन डिपेंडेंस इज ऑन अवर इनकम, इनकम है, बाकी सभी चीज़ें बाद में ही हो सकती हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब नाउ to understand this relation, now please I request you all to please note down this table. You may note down on your book itself, because the table which is given in the book na, later on it will be very difficult for us to learn those values. जो बुक में टेबल है वो ठीक है, गलत नहीं है, बट लेटर ऑन बिकॉज वी हैव टू एक्सटेंड दिस टेबल फर्दर, इसके और आगे आगे एडिशंस करने हैं, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये वाला टेबल विच आई एम शोइंग यू, दिस इज वेरी सिंपल, क्लियर कट वैल्यूज हैं एंड इट इज ईजी टू लर्न ऑल्सो। And all these are hypothetical tables. I hope you remember in 11th class you were told about this thing in detail. Hypothetical मतलब imaginary tables हैं, but which are based on universal studies. ठीक है, तो अब आप देखो, firstly you make two columns, ऊपर you can give heading consumption schedule या consumption table या propensity to consume schedule. One side you are writing level of income, bracket में please write rupees crore, ठीक है, ये नीचे लिखते हैं ना, रुपीज करोड़ में वैल्यूज हैं, एंड ऑन टुवर्ड्स द राइट साइड कॉलम इज कंजम्पशन, ब्रैकेट में रुपीज करोड़, ठीक है। अब लेवल ऑफ इनकम है 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। यू कैन सी देयर इज गैप ऑफ 50, ठीक है। एंड टुवर्ड्स दिस साइड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टार्ट्स फ्रॉम 50, 75, 100, 125, 150, 175 and 200. Among all the values there is difference of 25, but the initial value, first value that is 50, but rest of the values they are having gap of 25 only, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, now you please observe this table carefully. तो we see few things very interesting. One is
कि when the level of, and this we are not talking about any individual, this is the behavior pattern of the economy, all the people in the economy, ठीक है, सब लोगों के लिए we are talking in terms of macro economic concepts, तो ये सभी लोगों का behavior है पूरी economy का. तो जब economy में लोगों का income level है zero, तो even at that time they are spending some money. यही मतलब हुआ फर्स्ट लाइन का कि इनकम लेवल जीरो है. जीरो माने पीपल डोंट हैव एनी इनकम, हमारे पास कोई इनकम नहीं है, कोई कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं, बट इवन देन वी आर स्पेंडिंग, वी आर इंक्रीजिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि चाहे हमारी इनकम जीरो है, कोई सोर्स नहीं है, कोई जरिया नहीं है हमारे पास मनी के आने का, बट इवन देन अवर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ आर स्टिल देयर. भूखे हैं, खाना सभी ने खाना है, चाहे पैसे हैं या नहीं है, कपड़े सभी की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत सिर पे छत होना, रहना, कुछ अपनी रूटीन लाइफ को, डेली लाइफ को जीना, जिसको बोलते हैं ना, जीने के लिए कुछ तो पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं. ज़्यादा ना करें बट समथिंग इज़ टू बी स्पेंड, तो भी हम पैसे खर्च करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इवन इनकम लेवल कैन बी जीरो, बट इवन एट दैट टाइम पीपल हैव टू स्पेंड सम मनी. हाउ डू दे मैनेज दिस मनी, ये आगे दो चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है. या तो लोग बोरो कर ले, उधार ले ले, किसी से कर्ज ले लें, लोन ले लें, है ना, ये तो एक तो ये तरीका हो सकता है. एक हो सकता है चोरी कर ले, हमने उसके और नहीं जाना है, इलीगल काम की और नहीं जाना, चोरी चिकारी वाला नहीं करना हमने. ठीक है, अब इस ये भी नहीं करना कि उधार ले ले, ये भी नहीं करना. हियर इन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू अज्यूम कि ये जो 50 रुपए हैं, दीज 50 रुपीज, फ्रॉम वेयर विल दीज कम, दीज विल कम फ्रॉम द प्रीवियस सेविंग्स. वी ऑल पीपल सेव मनी, कुछ ना कुछ जितना भी है एज पर अवर इनकम लेवल, एवरीबडी सेव्स. और जो पहले के सेव किए हुए पैसे हैं, दोज मनी दे हेल्प अस इन अवर रेनी डेज. यू नो द मीनिंग ऑफ रेनी डेज, इट इज एन इडियम. रेनी डेज मतलब जब मुसीबत का समय होता है, कोई और मुश्किल आती है, पैसे नहीं होते, तो पिछली की हुई सेविंग ही हमारी हेल्प करती है. तो दिस मनी हैज बीन सेव्ड प्रीवियसली बाय द पीपल, एंड व्हेन दे डोंट हैव एनी इनकम इन द प्रेजेंट टाइम, दे मेक यूज ऑफ देयर प्रीवियस सेविंग्स. यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में ये 50 रुपीज वहाँ से आएंगे प्रीवियस सेविंग्स में से. ठीक है, अच्छा, नाउ इनकम इज इंक्रीजिंग, 50 हो गई, 100 हो गई, और इंक्रीज हो रही है. तो इन द सेम टाइम वी आर सीइंग दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज आल्सो इंक्रीजिंग. So what can we say? There is what type of relation? There is positive relation between income level and consumption level. यही दिख रहा है हमें टेबल से. ये इनकम बढ़ रही है, साइड बाय साइड कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग अपवर्ड, both are increasing. So that means there is a positive relation between consumption level and income level. ठीक है, उसके बाद another thing is there कि when this income level comes or reaches at this point of 100 rupees, ठीक है, at that time our consumption expenditure that also becomes equal to that. मतलब पहले हमारे पास इनकम नहीं है तो हम पिछले पैसों में से खर्च करते जाते हैं, फिर थोड़ी सी इनकम बढ़ी, अभी भी हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं. 50 रुपये इनकम है, सारे के सारे खर्च कर लिए, 25 रुपीज़ अभी भी हम पिछले पैसों में से ही खर्च कर रहे हैं, पिछली सेविंग में से ही. अब जब इनकम होती है हमारी 100 रुपीज़, मतलब एक सिचुएशन है व्हेन अवर इनकम रीचेज 100 रुपीज़, तो हम सारी की सारी इनकम खर्च कर लेते हैं, जितने आए पैसे सारे, ऑल मनी हैज़ बीन स्पेंट. ठीक, जिस पॉइंट के ऊपर अवर कंजम्पशन बिकम्स इक्वल टू अवर इनकम लेवल, दैट पॉइंट यू कैन सी दिस लाइन हैज बीन मार्क्ड विद ए लाइन, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. यू कैन राइट ऑल्सो, जहाँ पर व्हेन अवर कंजम्पशन, सी मीन्स कंजम्पशन, वाई मीन्स इनकम. ठीक है, सो व्हेन अवर कंजम्पशन जस्ट बिकम्स इक्वल टू अवर इनकम, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. मतलब वट एवर हैज कम टू अस, एवरीथिंग हैज बीन स्पेंट, जो आया सारे का सारा खर्च कर लिया. ठीक, नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू, इसके बाद क्या हो रहा है? नाउ इनकम इज इंक्रीजिंग, बट व्हाट वी सी, कंजम्पशन लेवल इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट नाउ देयर इज लेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू इनकम. अब यहाँ देखो, इनकम बढ़ गई है, 150 रुपीज़ है, अब हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थोड़ा कम है, उसके कंपैरेटिवली 125 रुपीज़ है. इसका मतलब बाकी के 25 रुपीज़ कहाँ गए? नाउ वी हैव स्टार्टेड सेविंग देम, बच गए. जितनी इनकम है सारी नहीं खर्ची, उसका कुछ पार्ट खर्च लिया, जो बचा दैट विल बी नोन एज सेविंग. फर्दर इनकम इज इंक्रीजिंग बट कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट नाउ वट डू वी ऑब्जर्व कि द इंक्रीज इन इनकम इज मोर. ये देखो, ये ज़्यादा बढ़ रही है, 50, 200, 250, 300. Income is increasing at a faster rate, but in comparison to that, consumption expenditure is increasing, but not at the same rate as our income is increasing.
आई होप यू आर ऑब्जर्विंग दिस टेबल। ये 125, 150 मतलब बढ़ रहा है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसे खर्च कर रहे हैं, बट उतने खर्च नहीं करते, उसी प्रपोर्शन में खर्च नहीं कर रहे हैं जिस प्रपोर्शन में हमारी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब इनकम और कंजम्पशन के बीच में नाउ गैप इज इंक्रीजिंग, फर्क आ रहा है, हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ द सेम थिंग वी कैन अंडरस्टैंड, all this has been written in the lines which are given in the table. Let me show you the diagram also. Now this is the diagram. ये यहाँ पे here on x axis we are showing income in rupees crore, and on y axis you will write in full form consumption expenditure. Please draw this diagram also side by side. I request you all to draw the diagram. Please don't depend upon the book only. Draw the diagram, x axis and y axis. ठीक है, ड्रॉ दिस लाइन, जीरो से लेके ओरिजिन से लेके ये वाई की लाइन, वाई की लाइन का मतलब है इनकम लाइन। दिस हैज बीन ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक्सिस जो होते हैं विच एंगल दे शो, एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये है ना परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के एंगल के दो पार्ट कर दिए, मतलब उसका हाफ कर दिया, तो ये किस एंगल पे ये लाइन चल रही है तकरीबन, वी डोंट हैव टू मेक यूज ऑफ प्रोट्रैक्टर, डी नहीं यूज करना, वैसे ही अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल 45 डिग्री एंगल पे जो आपकी लाइन बने। दिस लाइन इज कॉल्ड, इसका मीनिंग इस दिस लाइन इज कॉल्ड इनकम लाइन, वाई, वाई मीन्स इनकम। ठीक है, और ये 45 डिग्री पे होने का मतलब ये है कि भाई दिस लाइन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एज वेल एज फ्रॉम वाई एक्सिस, एक जैसा डिफरेंस है फ्रॉम वाई एज वेल एज फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि ये सेंटर में है, बीच में है। मतलब इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट्स आएंगे वहां पे जितनी हमारी कंजम्पशन है उतनी ही हमारी इनकम है। ठीक है, 45 डिग्री लाइन, अगर ये सारा नहीं समझ आता सिंपली आप इसको कह दो इनकम लाइन। ठीक है जी, अच्छा अब फ्रॉम नाउ वाई एक्सिस, यहाँ पर आप कहीं से भी यू कैन टेक पॉइंट एनीवेयर, थोड़ा गैप छोड़ लेना, टेक एनी पॉइंट ए हियर एंड ड्रॉ ए लाइन विच इज कटिंग दिस वाई लाइन, इसको इंटरसेक्ट करती हुई ये सी की लाइन ड्रॉ करनी है। सी मीन्स कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की लाइन, दिस इज कॉल्ड सी फंक्शन। सी फंक्शन मतलब कंजम्पशन फंक्शन, मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। This is nothing else but simply the diagrammatic presentation of the table which we have written earlier. उसी टेबल को अब आपने पॉइंट लगा लगा के नहीं करना है इतना, देयर इज नो सच टाइम इज अवेलेबल विद ऑल द चिल्ड्रन, इतना पेपर में टाइम नहीं होता कि हम पॉइंट्स को शो करें। सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल इफ वी ड्रॉ, इफ वी शो, वी विल गेट द टू लाइन्स इन दिस शेप, ऐसी लाइन्स हमें मिलेंगी। ठीक है, नाउ द सेम थिंग, let us try to correlate the table and this diagram. अब आप अपना टेबल देखो, वहाँ पे देखो you have written कि जब इनकम लेवल 0 है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50। ठीक है, ये ए पॉइंट, तो ये जो गैप है ओ ए का गैप, दिस इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50 रुपये खर्च कर रहे हैं, कब खर्च कर रहे हैं जब इनकम लेवल 0 है। तो दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ये ओ ए के इक्वल, यहाँ पर आप ब्रैकेट्स ही लगा के यू प्लीज राइट डाउन, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। प्लीज राइट डाउन हियर ऑटोनोमस, पूरा लिखना है, ये ऑटो 3 व्हीलर वाला ऑटो नहीं है, ऑटोनोमस, AUTONOMOUS, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी खर्च करते हैं, कि चाहे इनकम नहीं है तो भी हम खर्च करते हैं। ठीक है, नाउ दिस ई पॉइंट, ये पॉइंट है जो टेबल में हमारा पॉइंट है ना, वहाँ जहाँ इनकम इज 100 एंड कंजम्पशन इज ऑल्सो 100, ये पॉइंट है ई पॉइंट, वेयर दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर सी इज इक्वल टू वाई, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, नाउ प्रायर टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के पहले व्हाट डू वी सी, विच लाइन इज लाइंग अबव, कौन सी लाइन ऊपर है, ये वाली लाइन, सी की लाइन, ये देखो ये सी की लाइन ऊपर है इस ई पॉइंट से पहले, ब्रेक इवन से पहले, और वाई की लाइन ये नीचे है, मतलब हमारी इनकम कम है। आप अपने टेबल में देखो जहाँ आपने लिखा है इनकम 0, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50, इनकम हो गई हमारी 50, यहाँ मान लो 50 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी भी ज़्यादा है 75,
फिर उसके बाद जाके होता है ये यहाँ तक आते आते इनकम और कंजम्पशन दोनों 100 हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पहले, इस ई पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज मोर एज कम्पेयर टू अवर इनकम, ठीक। ये सारा पार्ट जो आप बुक में जिसको शेडिंग किया हुआ है और बीच में लिखा हुआ है, ये सारा पार्ट शेडिंग करके लिखा हुआ है डिस सेविंग। डिस सेविंग का मतलब कि फ्रॉम वेयर दिस मनी इज कमिंग, दिस मनी जो हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं अबव अवर इनकम लेवल, दैट मनी इज कमिंग फ्रॉम अवर प्रीवियस सेविंग्स। बैंक से निकाल के जो हमने पैसे सेव किए हुए हैं, हमने बैंक से विदड्रॉ कर रहे हैं अपनी पिछली सेविंग्स में से, और वो पैसे को खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा मनी खर्च हो रहा है। और यहाँ पर जीरो लेवल के ऊपर ये सारे का सारा ही हमारा जो ऑटोनमस कंजम्पशन है, यहाँ पर हमारी कोई भी इनकम नहीं है, सारा ही पैसा हमने बैंक से निकाला, पिछली सेविंग में से निकाला। उसके बाद जब इनकम थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो जाती है तो एट दैट टाइम जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, जितनी तो इनकम है वो तो खर्च कर ही ली, बट जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हम अपनी पुरानी सेविंग में से निकाल के यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन वी मेक यूज ऑफ अवर प्रीवियस सेविंग्स, देन इन इकोनॉमिक्स द टर्म इज यूज्ड डिस सेविंग्स, ठीक है, डिस सेविंग्स, पुरानी सेविंग। नाउ एट दिस, इन दिस एरिया विच वैल्यू इज मोर, कंजम्पशन। C इज ग्रेटर देन Y, क्योंकि C की लाइन ऊपर है, Y की लाइन नीचे है, ठीक है। C इज ग्रेटर देन Y एट दिस पॉइंट। अच्छा अब आप बताइए, इन दिस एरिया C इज ग्रेटर देन Y, विल देयर बी एनी सेविंग? सेविंग होगी इस एरिया में? कोई सेविंग नहीं होगी, क्योंकि सेविंग तो तब होगी ना जब हमारी इनकम ज़्यादा हो। तो इनकम तो है ही नहीं, इनकम से ज़्यादा तो हम खर्च कर रहे हैं, तो जब खर्च ही ज़्यादा कर रहे हैं तो कोई सेविंग नहीं है, रादर पुरानी सेविंग को भी यूज़ किया जा रहा है। तो दैट मीन्स इन दिस एरिया, अगर आप लिखना चाहो तो कहीं पर एरो लगा के भी लिख सकते हो, नेगेटिव सेविंग्स। नेगेटिव सेविंग, कोई सेविंग नहीं होगी क्योंकि हमारी इनकम इज वेरी लेस, ठीक है। यहाँ पर भी कोई सेविंग नहीं होगी ई पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जितनी इनकम हो रही है सारी की सारी हम लोग खर्च कर रहे हैं, कोई सेविंग नहीं। ये हियर आई हैव रिटन एस इज इक्वल टू जीरो, एस मीन सेविंग, ठीक है, सेविंग जीरो। और इस पार्ट में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखा सकते हो नेगेटिव सेविंग, कोई हो ही नहीं सकती है। नाउ व्हेन वी रीच टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ दिस ब्रेक इवन पॉइंट, इधर आ जाते हैं, मतलब हमारी इनकम और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नाउ अवर इनकम लेवल इज मोर, टेबल में आप देखो जहाँ आपने लिखा है 150, 200, 250, 300, अब इनकम ज़्यादा हो रही है, बट एज कम्पेयर टू दैट कंजम्पशन इज लेस। कंजम्पशन भी बढ़ रही है, ये नहीं कि वो खत्म हो गई, कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट द रेट ऑफ इंक्रीज, द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, that is less as compared to rate of increase या speed of increase in income level. So it means in this part, यहाँ पर क्या है, which line is lying above income की line, तो we can show it in this manner also कि y is greater than c, कि भी y ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ अवर कंजम्पशन। तो जितनी ज़्यादा इनकम है उसका मतलब क्या हो गया, अब हमारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव सेविंग्स। 100 रुपये इनकम है, बीच में से हमने 75 खर्चे हैं, तो 25 रुपये क्या हो जाएंगे हमारी सेविंग। फिर 200 रुपये इनकम है, उसमें से हमने 150 रुपये खर्च कर दिए, बाकी कितने बच गए, 50 रुपये, वो क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव सेविंग, ठीक है। तो जब हमारी इनकम कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अवर कंजम्पशन, तो देन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेविंग। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आप अपनी बुक में नीचे करके देखो, एक लिखा हुआ है दिस केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्स ने ये सारे बिहेवियर पैटर्न को, ही हैज गिवन ए स्पेशल नेम, ही हैज सेड कि भी दिस जो टेंडेंसी है, ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, बिहेवियर है लोगों का, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल लॉ। साइकोलॉजिकल मतलब सारे ही लोग इस तरह से करते हैं, कहीं भी रहते हो, कोई भी हो, ऑल पीपल बिहेव इन द सेम मैनर, कि इनिशियली व्हेन देयर इनकम इज जीरो they make use of their previous savings, when income increases they start spending, and their income is still less, they keep on spending more with the help of their previous savings also. Then a point comes when our income becomes equal to consumption expenditure, and after that, now अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई पर्सन अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, मान लो आप हो, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप यू गो टू एनी न्यू प्लेस, है ना, वहाँ पे यू डोंट गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, तो वहाँ पे जाके आपको अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करनी है, अपना घर का अरेंजमेंट करना है। अगर घर है तो घर में रहने के लिए सामान चाहिए, अज्यूमिंग कि पेरेंट्स की कोई हेल्प नहीं है, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स ऑन योर ओन। तो आपको घर के लिए बर्तन भी खरीदने पड़ेंगे, घर के लिए कोई बैठने के लिए चेयर टेबल भी लेना पड़ेगा, कपड़े भी लेने पड़ेंगे, सारा कोई खाने पीने का सामान लेना पड़ेगा, कोई बेड लेना पड़ेगा, कोई और बिस्तर लेना पड़ेगा, सो मेनी थिंग्स आर देयर। कोई आप व्हीकल लोगे, कितनी ज़रूरतें होती हैं।
तो जब तक हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती हैं, हमारी इनकम सारी की सारी खर्च हो जाती है। फिर लाइफ में एक टाइम आता है कि हमारी सारी इनकम, हम अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ही हमारा सारा मनी खर्च होता जाता है। बट एक टाइम आता है कि जब हमारी घर की, लाइफ की मटेरियलिस्टिक ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती हैं, घर का सारा सामान आ गया, कोई व्हीकल भी ले लिया, अपना घर भी बना लिया, सब कुछ ले लिया, सब चीज़ें ले ली, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास पैसे बचने शुरू होते हैं। पहले तो हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के ऊपर ही वी कीप ऑन स्पेंडिंग। तो जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, आफ्टर दैट, आफ्टर मतलब इट कम्स, दिस पॉइंट कम्स इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन डिपेंडिंग अपॉन हिज लेवल ऑफ इनकम। किसी की लाइफ में ये पॉइंट जल्दी आ जाता है, किसी की लाइफ में लेटर ऑन आता है, कि जब तक उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती वो आदमी खर्च करता जाता है। जब हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो जाती है, फिर हमारे पास मनी बचना स्टार्ट हो जाता है। तो केन्स ने ये सारे बिहेवियर पैटर्न को, ही हैज नेम्ड इट एज दिस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, कि मोर और लेस ऑन एन एवरेज इन जनरल ऑल पीपल बिहेव इन द सेम मैनर। ठीक है जी। सो दिस इज दिस ये लिखा ना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये सभी जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, ये सारा कुछ वही है। आपने ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन का मेन लाइन ही लर्न करनी है, सारे का सारा याद नहीं करना। सो टुडे लेट मी सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ओनली 4 मिनट्स आर देयर, तो आगे का काम नहीं करते। तो आज आपने बैठ के सिर्फ यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव टू डू। अब ये जो कंजम्पशन फंक्शन है, ये ऊपर डायग्राम था, अब यही जो कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, नाउ इट इज टू बी स्टडीड इन 2 पार्ट्स। ठीक है, आगे इसका अगला पार्ट है, इट इज टू बी स्टडीड इन 2 manner, 2 parts. One part is called average propensity to consume, other part is called marginal propensity to consume. ठीक है, average propensity is denoted by the term APC, capital letter में APC लिखा हो तो you have to understand कि it is average propensity to consume। तो इसका मीनिंग क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी मैं बता ही देती हूँ, छोटा सा ये कर लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द गिवन लेवल ऑफ इनकम, कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल या गिवन लेवल ऑफ इनकम। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, रेशियो है ये और कुछ भी नहीं है, कि हमारे पास जो भी हमारा एक गिवन लेवल ऑफ इनकम है उसमें से हाउ मच मनी वी आर स्पेंडिंग। 100 रुपये इनकम है, आपने 80 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो एपीसी कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई इनकम लेवल। ठीक, अच्छा अब आप पहले आप ये लिख लो एक टेबल, लेटर ऑन आई कम टू दिस डायग्राम and the second term. Let us understand. You please note down this table. Note down and then you yourself will calculate APC. Please write down income. Income को लिखना है Y, capital Y. So macroeconomics में इस चैप्टर में wherever the term Y comes, that stands for income. Income है 0, 100, 200, 300 and 400. ठीक है, 0, 100, 200, 300, 400. Second column you please note consumption, consumption expenditure या simply consumption. It is to be denoted by C, capital C. ठीक है, now it is given 40, 120, 200, 280, 360. 40, 20, 120, 200, 280 and 360. ठीक है, now simply apply the method. Please don't look at the solution, आप अपने आप करिए. Find out APC. APC का फॉर्मूला लिख लीजिए, APC is equal to C over Y. ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना। अब नाउ C over Y, 40 over 0, तो इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, है ना, 0 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे नील का साइन लगा देना है, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड टू एन एग्जैक्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, नाउ बोथ द वैल्यूज आर देयर। C की वैल्यू कितना है? 120 डिवाइडेड बाय उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम लेवल कितना है? 100, तो ये हो गया 120 over 100, कितना आ जाएगा? 1.2। ठीक है, 0 लिखना है, ठीक है, मर्जी है, नहीं लिखना तो भी फाइन। देन सेकंड, नेक्स्ट कंजम्पशन लेवल कितना है? 200 डिवाइडेड बाय इनकम लेवल भी 200 है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1। सेम वे थर्ड कंजम्पशन लेवल 280 डिवाइडेड बाय 300, तो इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट 0.93। ठीक है, आपने खुद कैलकुलेशन करना है, प्लीज डोंट नोट डाउन द वैल्यूज ओनली। देन लास्ट इज 360 डिवाइडेड बाय 400, तो इफ यू डिवाइड दिस यू विल गेट 0.90। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है?
मीनिंग ये है कि एज अवर इनकम इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो corresponding to every increase in income there is a continuous fall in the value of APC. चेक करो जरा ध्यान से, ये पहले 1.2 पहले ज्यादा है,